Hope you are doing well and studying hard. Today is 31st of December. Today is 31st of December, and today and here's the today's current affair. So most of us would now probably know that yesterday our honorable Prime Minister Narendra Modi sir visited Ayodhya for the inauguration of the Ayodhya Dham railway station and Maharishi Valmiki airport. So from there he went to the house of so he visited to the 10th crore beneficiary of Ujjwala LPG scheme where he had tea and called it as Chai Pe Charcha. From this news, it's irrelevant to know whose home it was or how the tea was, but what we need to know is about this scheme called PM Ujjwala. Okay. So it is under Ministry of Petroleum and Natural Gas. It aims to distribute LPG cylinders to women from BPL. This scheme is not available for every household. It is only for those who belong from below poverty line. In this scheme, the minimal charge of rupees 1600 is charged for the connections, but its refilling is quite costly for the BPLs to avail. uh, Also it has its significance. What is the significance of this scheme? First of all, by providing clean fuel, it empower the women of rural households. It reduces use of unclean cooking fuel, and from this point you can derive many other point, like using unclean cooking fuel can gives you very respiratory disorders. So we can say that it also reduces respiratory illness. Okay. so it was it so this is all about PM Ujjwala Yojana. The next current affair topic is The next current affair is regarding the census. Every one of us knows that every 10 year the census is conducted. Okay, but this time the census is being delayed due to the COVID, and in the news it came that it has again been extended, and it would be the ninth extension. Okay, but this year's census is very much important for us. Like we everyone know that this year Lok Sabha has passed 128th constitution amendment, which is also called Nari Shakti Vandan Abhiyan, है ना? So what is this about? It aims to provide one third reservation for women in Lok Sabha and legislative assemblies. Okay. तो इस साल का सेंसस नहीं हो पा रहा, और इस एक्ट में एक प्रोविज़न है कि ये इफ़ेक्टिव तभी होगा पोस्ट डीलिमिटेशन. ठीक है, ये तभी एक्टिव होगा पोस्ट डीलिमिटेशन. और ये डिमिलिटेशन जो होता है ना, बेस्ड ऑन फर्स्ट सेंसस हेल्ड आफ्टर द एक्ट. विच एक्ट? दिस एक्ट केम इनटू फोर्स. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंसस न्यूज़. आप जब इतना पढ़ रहे हैं सेंसस के बारे में, तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर इट माइट बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो समथिंग मोर, लाइक सेंसस कौन कंडक्ट करवाता है. So it is conducted by Office of Registrar General and Census Commissioner.
इंडिया विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, और जब इतना पढ़ रहे हैं तो वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड सेंसस का सिग्निफिकेंस क्या होता है ना। सो हेयर आर दी सिग्निफिकेंसेस। इट गिव्स द क्लियर पिक्चर ऑफ द कंट्री, ठीक है, कंट्री का ये क्लियर पिक्चर दे, ठीक है। सेंसस आता है, इट टेल्स अस अबाउट अवर पॉपुलेशन, डेथ, नंबर ऑफ डेथ रजिस्टर्ड, नंबर ऑफ चाइल्ड बॉर्न, मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट रेट, तो ये सब का एक क्लियर पिक्चर कंट्री का देगा, ठीक है। इट टेल्स अस अबाउट डेमोग्राफी, कितना यंग पॉपुलेशन है, कितना ओल्ड पॉपुलेशन है। Data of the census helps us in framing the program policies, which would in turn uplift the area of the improvement. It will uplift the society, or through the census we can review the progress कि next 10 लास्ट के 10 ईयर्स में और अभी के 10 ईयर्स में क्या ही डिफरेंस है और क्या क्या हमारा प्रोग्रेस हुआ है। तो दीज आर द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग द सेंसस फॉर द कंट्री, ठीक है। सिंस एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि सेंसस आजकल बहुत न्यूज़ में है, तो इट माइट बी इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशंस। फिर द सेकेंड करंट अफेयर इज, एक टर्म आता है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वाप। तो ये क्या हो सकता है, तो अब इस टर्म से ही समझना कि इसमें क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वाप, इस टर्म को ही आप अगर काटते हो तो समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, जैसे कि कोई कंपनी होती है ना, मान लो कोई कंपनी है या फिर बॉन्ड सेलर कह सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये अपना बॉन्ड देती है और यहाँ पे एक बायर है, तो ये इस कंपनी से बॉन्ड परचेस करता है, ठीक है। इन रिटर्न ये इसको कूपन देती है, जिसके थ्रू उसको अपना प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट जो भी है ये वापस मिलता है, ठीक है। मान लो इन एनी वर्स्ट केस सिनेरियो ये कंपनी क्लोज्ड हो गई या फिर इसका दिवालिया निकल गया, तो अब इसके मनी का क्या होगा, इस बायर के मनी का क्या होगा, है ना। नॉर्मली हम ऐसे सिचुएशंस में इंश्योरेंस लेते हैं, तो फिर मतलब जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आता है ताकि हमारा रिस्क जो होता है लॉस का वो कम हो सके, तो यहाँ पे आता है ये क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, ये जो बायर है ये क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप जो है इसका जो सेलर होता है इनके पास जाता है, ये जो ये है इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन केस अगर ये कंपनी का दिवालिया हो जाए तो, ठीक है। इन रिटर्न इसे प्रीमियम देना पड़ता है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। ये टर्म एक आर्टिकल में आया हुआ था, तो आई थॉट दैट कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो आई एक्सप्लेन्ड इट। अब चलते हैं दूसरे करंट अफेयर की तरफ। एक न्यूज़ थी कि इंडिया का पेट्रोकेमिकल किसे कहा गया है, पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया, सो इट्स गुजरात। इसे गुजरात को क्यों कहा गया है, तो गुजरात में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रास रोड ऑयल रिफाइनरी जामनगर में प्रेजेंट है, और ओपेल का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स दहेज जो गुजरात में है वहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसी बेसिस पे पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया गुजरात को कहा गया है। उसके बाद फिर एक आर्टिकल था हेल्थ टैक्स को लेके, तो उसमें कहा गया था कि आजकल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जंक फूड्स का और शुगर कंटेंट का और सॉल्ट कंटेंट का, तो हमें इन सब जंक फूड्स पे टैक्स लगाना चाहिए, जिसके चलते वो कॉस्टली हो जाएंगे और लोग इसका कंजम्पशन कम करेंगे, ठीक है। सो ऑलरेडी वैसे जो भी शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस हैं इस पे जीएसटी लग रहा है 28% का, ठीक है। जीएसटी का स्लॉट पूछ लेता है एग्ज़ाम में डायरेक्ट, तो ये याद रखना कि जैसे कोको कोला वगैरह हो गया वहाँ पे 28% जीएसटी लगता है, और HFSS प्रोडक्ट्स पे 12% का जीएसटी लगता है। HFSS क्या है, हाई फैट साल्ट एंड शुगर, इट्स हाई फैट साल्ट एंड शुगर कंटेंट। तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पे 28% और इस पर 12% का जीएसटी ऑलरेडी लग रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स, कुछ डाटा फैक्ट्स कहा गया था, जैसे कि पर ईयर इंडिया में लोग जो है पर इंडिविजुअल 25 kg ऑफ शुगर कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। और ग्लोबली ये जो है 22 kg है पर पर्सन। तो इंडिया में 3 किलो चीनी लोग ज़्यादा खा रहे हैं, ऐसे ही इंडिया को डायबिटिक
कैपिटल नहीं कहा गया है। फिर दूसरा डाटा था कि जो WHO का रिकमेंडेशन है उससे 5 टाइम ज़्यादा कंजम्पशन इंडिया में शुगर का होता है। ठीक है, इसी तरह के कुछ और फैक्ट्स थे। उसके बाद फिर इनिशिएटिव्स वगैरह गवर्नमेंट का हमें जानना चाहिए। तो एक तो GST का स्लॉट हो गया, फिर एक ना केरला ने फैक्ट टैक्स स्टार्ट किया था जो बाद में जाके GST से मर्ज हो गया था। तो ये एक बात कही गई थी। फिर एक करंट अफेयर था कि इसरो ने टारगेट किया है कि ये 50 सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे इन 5 ईयर। ठीक है, ये जो 50 सैटेलाइट्स होंगे ये होंगे इन ऑर्डर टू बूस्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, और ये मिलिट्री पर्पस के लिए होगा। इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत कम ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो एक ये करंट अफेयर था। और हाँ, मिलिट्री पर्पसेस के लिए सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट्स है वो US के पास है, फिर चाइना एंड देन रशिया। इंडिया आई थिंक 7th नंबर पे है। ठीक है, तो ये एक दूसरा करंट था। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने कल बहुत सारे स्मॉल सेविंग स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है, घटाई किसी की नहीं है, थोड़ी बढ़ाई ही है। जैसे कि उसमें से एक था सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें 8% इंटरेस्ट के बाद गवर्नमेंट ने उसको 8.2% कर दिया है। तो हमें ये एक सुकन्या समृद्धि योजना, इसके बारे में जानना चाहिए। तो ये क्या है? ये चाइल्ड सेविंग स्कीम है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और ये लॉन्च हुआ था 22 जनवरी 2015 में। इसमें आप कोई भी बच्चे हैं, कोई भी बच्ची है जिसका एज 10 साल से कम होता है, ठीक है, उसके नाम पे आप 250 से लेके मिनिमम अमाउंट 250 से लेके शायद 1.5 लाख तक का, ये 1.5 लाख रुपए तक का, हाँ, आप पैसा इसमें जमा कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है जब लड़की 21 ईयर्स की हो जाती है तब। उसके बाद फिर दूसरा एक रिपोर्ट था, एक सर्वे आया है, ग्लोबल रिस्क सर्वे, ठीक है, 2023 का। ये एक कंसल्टेंसी फर्म है PwC, उसने इशू किया है। तो इसने कहा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रिस्क है साइबर थ्रेट का, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज का, और फिर इन्फ्लेशन का। ठीक है, उसके बाद एक फैक्चुअल करंट अफेयर था कि राजस्थान का फर्स्ट स्नेक पार्क बन रहा है कोटा में। ठीक है, फिर एक टर्म था पेंट हुई एग्री। तो ये क्या है? UPSC में बेसिकली मैक्सिमम टाइम पूछ देते हैं, एक टर्म दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि क्या है, किसी इंसान का नाम है, जानवर है, बैक्टीरिया है, फंगस है, क्या है। तो ये एक न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया है जिसको डिस्कवर किया है विश्व भारती यूनिवर्सिटी में। ठीक है, टैगोरी नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि इनको सर रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा गया है। और ये ना एक गुड बैक्टीरिया है, ये ना प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया है। तो इसको हम प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया है, तो इसको हम लोग एज अ बायो फर्टिलाइजर्स कह सकते हैं। तो ये एक पोटेंशियल बायो फर्टिलाइज़र हो सकता है। ठीक है, बायो फर्टिलाइज़र से तो इस टर्म से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि ये हम लोग ये जो होता है, जो केमिकल फर्टिलाइजेशन होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र होता है, उसकी रिलायंस को कम करता है, ये कम होगा। ठीक है, नीड फॉर द केमिकल फर्टिलाइज़र। तो यहाँ से हम ये चीज़ एक डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये जो बैक्टीरिया है ये सॉइल के न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। ये हो गया एक। उसके बाद फिर इसमें इतना ही हमें लोगों को जानना था। फिर एक छोटा सा करंट अफेयर था, ऐसे ही मतलब करंट अफेयर एक आर्टिकल था, उसमें दिया हुआ था कि जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, तो एक बात है, हम लोगों को मतलब मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनके बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है ये बढ़ जाता है, और इस प्रोजेस्टेरॉन को कहा जाता है कि ये वॉमिटिंग इंड्यूस करता है। ठीक है, ऐसा अभी तक माना गया है, बट एक रिसर्च अभी आया है, तो उस रिसर्च का कहना है कि
जो वॉमिटिंग इंड्यूस होता है वो फीटस के चलते भी होता है, ठीक है। और ये जो हाई वॉमिटिंग सेंसेशन होता है इसको हाइपरमेसिस ग्रेविडियम भी कहा जाता है। तो इसमें बस इतना ही था, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके बाद फिर एक और आर्टिकल था, उसमें बताया गया था कि जो टीबी है वो प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में इसके केसेस कम आते हैं, जो कि अलार्मिंग है, ठीक है। और उसमें से हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक टीबी जो है एयरबॉर्न है। उसके बाद फिर ये माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस से होता है, ठीक है। बस हो गया। फिर कुछ खास नहीं था। एक वर्ड है COFT। तो ये क्या होता है COFT? तो ये है COFT। तो क्या होता है कि जब भी हम कुछ ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमारा जो कार्ड डिटेल्स होता है, कार्ड या डेबिट कार्ड का जो डिटेल्स होता है वो ना मर्चेंट के पास रह जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग कार्ड ऑन फाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्ड ऑन फाइल है, अब आपका कार्ड का डिटेल्स किसी मर्चेंट के पास है तो कहीं ना कहीं ये चांसेस ऑफ फ्रॉडलेंट बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है। तो इसको कर्व करने के लिए RBI ने इनेबल किया है। सो COFT हैज़ बीन इनेबल्ड बाय RBI। ठीक है, ये क्या है? कार्ड ऑन फाइल टोकेनाइजेशन, ठीक है। इससे क्या होगा कि इन प्लेस ऑफ कार्ड ऑन फाइल अब आपको एक ना नंबर जनरेट होगा जो बहुत ही रैंडम होगा, उसको हम टोकन कहेंगे, और वो एक तरह से रिप्लेस कर देगा एक्चुअल क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को विद द अल्टरनेट कोड, एंड दैट कोड विल बी यूजफुल फॉर द ऑनलाइन पेमेंट्स, ठीक है। उसके बाद फिर एक लास्ट का एक टॉपिक था, पॉलिसी ऑन यूज़ ऑफ इनर्ट वेस्ट। तो इसमें कुछ नहीं था, ये पॉलिसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने तैयार किया है। इसमें ये कहा गया है कि जितने भी इनर्ट वेस्ट होते हैं ना, उसका हम यूज़ नेशनल हाईवेज़ के कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं, जिसके चलते ऑब्वियसली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये एक था। फिर हाँ, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए थे कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ ऑलरेडी हो चुका है। तो उसमें एक था दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस 9 नेशनल हाईवे 48। तो ये इस करंट अफेयर में बात कही गई थी। तो आज के करंट अफेयर में बस इतना ही था। थैंक यू।